Welcome everyone. I hope that you all are doing great and you are able to understand what we are covering. This is the last and the final chapter that we are proceeding on. Okay, so I believe that you are able to get it, whatever we are discussing in the way that I am teaching you. Okay, I am trying to explain you each and every line of the chapter because until and unless आप lines नहीं रीड करेंगे चैप्टर की आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएंगे ओके सिंस आपके बहुत ही नए सब्जेक्ट्स हैं दीज आर नाउ वेरी वेरी न्यू फॉर यू so it is important that you develop the habit of reading the lines okay until unless you won't be reading the lines you won't be breaking down the concepts आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी okay so it is important that we go and read line to line and understand each and every line what is written in it okay so we started with chapter 8 India climate vegetation and wildlife इस चैप्टर में हम तीन पार्ट्स में इसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे पहला आपका कवर करा हमने क्लाइमेट द लास्ट लेक्चर दैट वी कंप्लीटेड इज क्लाइमेट okay then in the second part of the lecture we will be talking about vegetation second part of the lecture that is today in this lecture we will be talking about the vegetation and then in the next lecture series we'll be talking about wildlife ठीक है next part में हम इसमें wildlife के बारे में बात करेंगे all right so I hope that climate is clear to you I have explained you climate but आपको अभी इस लेवल पर जितना समझ में आ सकता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल बिकॉज कॉन्सेप्ट्स अगर अभी से ही आपके क्लियर होंगे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके ऑल राइट सो वी विल जस्ट हैव अ वेरी क्विक रिविजन हम एक फटाफट से रिविजन करेंगे टू व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करे थे क्लाइमेट के अंदर एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड विद द न्यू टॉपिक ऑफ वेजिटेशन आज हम वेजिटेशन कवर करने वाले हैं just hold on for a minute all right so we started our chapter with a discussion of weather and climate what is the difference between weather what is the difference between climate and I made you understand that दोनों में बहुत difference होता है weather and climate are different they are not same okay so here I have notes these are the notes presented by me to you for you definitely okay so okay so these are the little drawings that I have drawn for you people ऑल राइट सो देखिए वेदर हमने स्टार्ट करा था वेदर की मीनिंग हमने देखी थी डे टू डे चेंजेस होते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर और वेदर में जब डे टू डे चेंजेस हम देखते हैं तो डे टू डे चेंजेस आपको किस किस में दिखाई देते हैं टेम्परेचर में रेनफॉल में सनशाइन में एक्सेट्रा फिर हमने बात करी थी आपके मेजर सीजन्स की सीजन्स कौन कौन से आपको मिलते हैं इंडिया में यू फाइंड विच सीजन वी सी कोल्ड वेदर सीजन दैट इज योर विंटर सीजन कब से कब तक दिसंबर टू फेब्रुवरी hot weather season summer season March to May then we have southwest monsoon season that is rainy season June to September and then we have season of retreating monsoon that is autumn season October and November I am telling you some of the important questions as well from here only please keep on noting down the questions also first question can be asked from here whether वेदर क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड क्वेश्चन कैन ऑल्सो फ्रेम फ्रॉम हियर नेम द 4 सीजन्स कौन कौन से सीजन्स है उनके नाम बताइए आप इनको नोट करते जाएं देन व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है it is the average weather conditions which have been measured over many years okay then हमने सबसे पहले डिस्कस करा था आपको कोल्ड वेदर सीजन दैट इज योर विंटर सीजन विंटर सीजन में आप देखते हैं दैट द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन का मतलब हो गया हमारी कंट्री और हमारी कंट्री नदर्न हेमिस्फीयर में आती है दैट मीन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन सन रेज आर नॉट फॉलिंग डायरेक्टली इन द नदर्न हेमिस्फीयर प्लीज do have a recall to all the previous concepts
एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया, एंड जिसकी वजह से आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर टेम्परेचर्स आपके बहुत कम होते हैं, एंड दैट इज व्हाई कोल्ड वेदर सीजन होता है. हॉट वेदर सीजन और समर सीजन. Hot weather season, you see that sun rays are directly falling in this region. Sun rays directly fall करते हैं. Temperature becomes very high. Hot and dry winds, which are called as loo, they blow during the day. आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what do you mean by loo? Then southwest monsoon season or the rainy season. इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था that this season is marked by the onset and advancement of the monsoon. कहाँ से winds blow करते हैं? अरेबियन सी से winds blow करते हैं. ठीक है, फटाफट से हम एक बार quickly we just have a look to the map. इस मैप को यहाँ पर देखें और फटाफट से एक बार आप रिवाइज करें. विंड्स जो है वो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो करती हैं. दिस इज योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और विंड्स जब इस डायरेक्शन से ब्लो करते हैं, अरेबियन सी के ऊपर से ब्लो करेंगी. कुछ विंड्स आके इधर चली जाती हैं और ये बे ऑफ बंगाल साइड से ब्लो करते हैं. और यहाँ पर आपको पता है वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ से जब विंड्स ब्लो करेंगी अरेबियन सी के ऊपर से, उनके पास में मॉइस्चर होता है क्योंकि वो एक वाटर बॉडी से ब्लो करते हैं, एंड देन दे स्ट्राइक द वेस्टर्न घाट. जब ये वेस्टर्न घाट्स पे स्ट्राइक करते हैं तो रेनफॉल होती है. देन बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो आपकी विंड्स मूव करती हैं, ये हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एंटर करते हैं. और यहाँ पर आपके मेघालय के अंदर 3 माउंटेन्स हैं जिनका नाम है गारो, खासी एंड जैंतिया. ये इन तीनों माउंटेन्स के बीच में ये विंड्स जो है पूरी ट्रैप हो जाती हैं और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. ठीक है, मौसिनराम इज द नेम ऑफ द प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट जहां पर हैवी रेनफॉल्स होती हैं पूरी दुनिया की. ऑल राइट, एंड देन यू सी किस तरीके से आपके विंड्स जो हैं ये आगे मूव करती हैं और यहाँ पर पूरे रीजन में बारिश देती हैं. ऑल्सो हमने रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ा था. जब विंड्स आपकी कंट्री से बाहर जाती हैं, व्हेन द विंड्स आर गोइंग बैक, वो कहाँ पर बारिश देंगी? तमिलनाडु के अंदर बारिश देती हैं, आंध्र प्रदेश में रेनफॉल देती हैं. ऑल राइट, ऑल्सो वी रेड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर. आपकी कंट्री में यहाँ पर लो प्रेशर रीजन डेवलप होता है, वाटर बॉडी में हाई प्रेशर डेवलप हो रखा होता है, एंड दैट इज व्हाई विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पर मूव करते हैं. हाई प्रेशर रीजन क्यों है वाटर बॉडी में? बिकॉज कंपैरेटिवली वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर लो होता है, और लैंड के टेम्परेचर जो है वो हाई है बिकॉज अभी यहाँ पर आपकी समर सीजन है. दैट इज व्हाई आप देखते हैं विंड्स वाटर बॉडी से लैंड की तरफ मूव करते हैं ड्यूरिंग द समर्स. एंड ड्यूरिंग द विंटर्स ये पूरा का पूरा सीन चेंज हो जाता है बिकॉज हमारे लैंड पर जो विंटर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है. इन कंपैरिजन टू इट, वाटर बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई हम ये देखते हैं कि विंड्स जो है आपके विंटर सीजन में लैंड टू सी मूव करते हैं. विंड्स स्टार्ट मूविंग लैंड टू सी. हमारी कंट्री से अब विंड्स बाहर जा रही हैं. ठीक है, और इसको बोला जाता है आपका रिट्रीटिंग मॉनसून. ठीक है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ऑटम बिकॉज नाउ विंड्स आर मूविंग बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल. ऑलराइट, देन वी टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है? अरेबिक वर्ड से है. ये इसका ओरिजिन मौसम वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है सीजन्स. इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में आती है. ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आती है ये भी हमने डिस्कस करा था, बिकॉज ये ट्रॉपिक्स में है. एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में पूरा का पूरा मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो इट इज द लोकेशन, कि वो प्लेस कहाँ लोकेटेड है, वो प्लेस इक्वेटर के पास में है, वो प्लेस कौन से लैटिट्यूड से कितना दूर है, कौन से लॉन्गिट्यूड पर आती है. लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखें तो आपकी कंट्री का जो सदर्न पोर्शन है, दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री इक्वेटर. ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर के बहुत पास है. दैट इज वाई सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आपको यहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलेंगे. क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन कैसी है? वेरी क्लोज टू इक्वेटर. ऑन द अदर हैंड जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर आपका इक्वेटर से बहुत दूर है. जम्मू कश्मीर इज वेरी फार फ्रॉम इक्वेटर.
दैट इज वाई नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में यहाँ पर आपको माउंटेनियस रीजन्स में टेम्परेचर्स कोल्ड मिलते हैं, वेदर कंडीशंस आर कोल्ड. सो लोकेशन मैटर्स अ लॉट कि आप कहाँ पर लोकेटेड हैं. ओके, देन ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एलिवेशन. दैट मीन्स अगर हम माउंटेन्स पर ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स में जाएंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती जाती हैं, वेदर कंडीशंस आपकी चेंज होती जाएंगी. अगर आप कोई प्लेन रीजन में है तो प्लेन्स में टेम्परेचर्स अलग होंगे, बट एज सुन एज वी मूव टू हायर ऑल्टीट्यूड रीजन, वहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है. इसी वजह से ड्यूरिंग द समर्स, जब आपकी वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, एट द टाइम पीपल विजिट द हायर ऑल्टीट्यूड रीजन, माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं. आपने सुना होगा हम शिमला जा रहे हैं घूमने, वी आर गोइंग टू नैनीताल, वी आर गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर फॉर समर वेकेशंस, राइट. सो क्यों जा रहे हैं हम वहां पर? बिकॉज वहां पर ड्यूरिंग द समर्स यू सी क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी कूल. कूल क्यों है? हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स है. सो एज वी मूव फ्रॉम द प्लेन्स, जैसे हम प्लेन एरिया से ऊपर जाते हैं, एक प्लेन रीजन से हम ऊपर जाते जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आता है, वेदर कंडीशंस में आपके चेंज आने लगता है. देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी प्लेसेस जो कि आपके कोस्टल एरियाज के पास में है, दोज प्लेसेस विच आर वेरी वेरी क्लोज टू द सी, ये जो रीजन्स हैं ये आपके सी के पास में है, तो यहाँ पर आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा. यहाँ पर आपको ना तो बहुत तेज गर्मी मिलेगी, ना बहुत तेज सर्दी मिलती है. हियर यू विल फाइंड मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. जितना दूर आप सी के होंगे, से फॉर एग्जाम्पल आपको यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ये सी के रेफरेंस में नहीं है. दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी वाटर बॉडी, ये किसी भी वाटर बॉडी के पास में नहीं आते हैं. इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर्स आपको बहुत या तो हाई मिलते हैं ड्यूरिंग द समर्स, एंड यू विल फाइंड टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली लो ड्यूरिंग द विंटर्स. क्लियर? सो ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को. ऑल्सो रिलीफ. रिलीफ का मतलब होता है टोपोग्राफी. ठीक है, कि वो माउंटेनियस रीजन्स में है, प्लेन रीजन्स में है, आप कोस्टल एरियाज में हो, किस तरीके के आप लैंडफॉर्म पर रह रहे हो, दैट इज योर रिलीफ फीचर. ठीक है, डेजर्ट रीजन्स में है, अगर आप डेजर्ट एरियाज में है तो डेजर्ट एरिया में आप रह नहीं सकते. द सर्वाइवल कंडीशंस आर वेरी वेरी हार्श, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो दैट इज वाई रिलीफ फीचर बहुत मैटर करता है. आप माउंटेनियस एरियाज में रह रहे हैं, आप प्लेन्स में रहते हैं, आप डेजर्ट एरिया में हैं, या आप कोस्टल एरियाज में हैं. ठीक है, सो इट मैटर्स अ लॉट. These are all the factors which affect the climate of any place. Please note down these factors. आप साथ साथ इनको नोट करते जाएं. Then example of regional difference in the climate of India. क्लाइमेट ऑफ इंडिया इतना ज्यादा वेरी करता है, इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. जैसलमेर और बीकानेर अगर आप देखेंगे, जो कि आपके राजस्थान के डेजर्ट रीजन्स में आते हैं, वहां पर आपको बहुत हॉट क्लाइमेट मिलेगा. ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर, वो आपको कोल्ड मिलेंगे, वहां पर वेदर कंडीशंस कोल्ड होंगी. कोस्टल एरियाज के यहाँ पर आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा. ठीक है, देन मौसम ग्राम में आप देखते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ठीक है, ओके. देन वन मोर थिंग टू बी नोटेड डाउन ओवर हियर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको नोट डाउन करिएगा. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट नेम्स ऑफ रेन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेज में बारिश को अलग अलग नाम से बोला जाता है. हिंदी में इसको वर्षा बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो हिंदी में आपने सुना होगा इसको क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं. उसी तरीके से उर्दू भाषा में इसको बारिश बोलते हैं. तो जब हम बारिश बोलते हैं, बारिश एक उर्दू शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है ये. ठीक है, देन बंगाली के अंदर यू कॉल इट एज वर्षा. व्हाट डू यू कॉल इट एज? वर्षा. एंड मराठी में इट इज कॉल्ड एज पाउस. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स. ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नेम्स. ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. हमने आपका पूरा रिवाइज कर लिया है क्लाइमेट का पोर्शन वंस अगेन. नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. अब हम आपके नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक पर आते हैं. ऑल राइट, natural vegetation. We see a variety of plant life in our surroundings. Definitely आपके आसपास में जो भी surroundings हैं,
उसमें आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं. यू फाइंड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, जहां पर भी आप रहते हैं उसके पास में आपने आपने भी प्लांट्स ग्रो कर रखे होंगे. मे बी मेनी ऑफ यू माइट हैव गार्डन्स एट योर होम. आपके आजकल टेरेस गार्डन्स आते हैं, आपके घर में बहुत सारे गार्डन्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो यू फाइंड अ वेराइटी ऑफ द प्लांट लाइफ. इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है प्लांट लाइफ के अंदर भी, इतना सारा आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा. यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज. हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद द ग्रीन ग्रास. There are also small plants called as bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, कई बार आप देखेंगे बहुत ह्यूज प्लांट्स होंगे. यू विल फाइंड एट टाइम्स वेरी स्मॉल स्मॉल प्लांट्स ऑल्सो. सो वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको बोला जाता है बुशेज या उनको बोला जाता है श्रब्स. इस डायग्राम पे यहाँ पर देखें आप, और इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर श्रब्स लिखा हुआ है. सो श्रब्स क्या होगे, जो भी आपको ग्राउंड लेयर दिखाई दे रही है, जो छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखते हैं ग्राउंड पर, दे आर कॉल्ड एज श्रब्स. ऑल्सो कुछ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी मिलते हैं. देखो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स वो होंगे जिनमें आपको फ्लावर्स मिलेंगे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं मिलते हैं. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm tree. Okay, so you will find that ऐसे बहुत सारे trees आपको दिखेंगे जो बहुत tall होंगे, उनमें बहुत सारी branches होंगी. They will have many many branches. बहुत सारी leaves होंगी. Like अगर आपने नीम का पेड़ देखा हो, mango का tree देखा हो, they have so many branches, they have so many leaves in them. Okay, and on the other hand you will find some of the trees which are standing with very few leaves such as the palm trees. ठीक है, तो कई ट्रीज ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारी आपको लीव्स मिलेंगी, एंड यू विल फाइंड सम ऑफ द ट्रीज जिनमें आपको बहुत कम लीव्स मिलती हैं. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल पाम ट्री, यू विल फाइंड वेरी लेस. पाम ट्री देखिए कैसा दिखाई देता है. हैव यू एवर सी पाम? आपने कभी पाम ट्रीज देखे हैं? हैव यू एवर सीन? Okay, so I just show you. See, this is the palm tree. So can you see it has very less leaves. Tall tree है, बहुत बड़ा है, लेकिन leaves देखो कितनी सी हैं. ज्यादा leaves नहीं दिख रही है ना. You will not find many leaves. On the other hand, अगर आप नीम का पेड़ देखते हैं, तो नीम के पेड़ में आपको बहुत सारी branches दिखेंगी, and you will find many leaves in it. I'll show you the picture of the neem also. नीम का पेड़ दिख रहा है आपने कभी? आपके घर के आसपास में भी लगा हुआ होता है. नीम ट्री इज फाउंड एवरीवेयर, सब जगह मिल जाता है. सी, दिस इज योर नीम. ये आपका नीम का पेड़ है. सो यू कैन सी कितनी सारी इसमें लीव्स हैं, कितने सारे आपको इसमें ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये आपका नीम ट्री है. सो यू कैन हैव अ डिफरेंस. द ट्रीज आर टॉल, बोथ ऑफ द ट्रीज आर टॉल, बट द डिफरेंस इज इन द लीव्स. यहां देखो कितनी कम लीव्स हैं. क्लियर? Okay, the grasses, shrubs and trees which grow on their own without any interference or help from human beings are called as natural vegetation. यहाँ से very important question, define natural vegetation. तो आप natural vegetation को कैसे define करेंगे? अगर आपसे कोई पूछता है, if anyone asks you, even in the exam it is asked, define natural vegetation. So you will be defining it as the grasses, the shrubs, the trees which grow on their own, जो अपने आप grow करते हैं without any interference or help from the human beings are called as natural vegetation.
सो ऐसे ट्रीज, ऐसे श्रब्स या ऐसे ग्रासेस जो अपने आप ऑन देयर ओन ग्रो कर लेते हैं, दे डू नॉट नीड एनी ह्यूमन हेल्प, जिनको कोई ह्यूमन हेल्प नहीं चाहिए होती है, ठीक है, दे हैव ग्रोन ऑन देयर ओन. डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज ये आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं, दे आर नॉट सेम. Different type of natural vegetations are dependent on different climatic conditions. देखो, according to the climatic conditions vegetation depend करती है. अगर आप बहुत गर्म रीजन में है, अगर आप डेजर्टिक रीजन में है, तो डेजर्ट्स में आपको पता है क्लाइमेट कितना ज्यादा डिफरेंट होता है. द वेदर कंडीशंस इन द डेजर्ट्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. वहां पर आपको हाई टेम्परेचर्स मिलते हैं. तो आप खुद सोचिए कि क्या इतनी तेज गर्मी में कोई प्लांट सरवाइव कर सकता है? नहीं. तो ऐसे प्लांट्स आपको उस रीजन में ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कि उस डेजर्टिक कंडीशंस को हैंडल कर सकें, जो उस डेजर्टिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकें. दैट इज वाई जनरली आपने देखा होगा कि डेजर्ट रीजन्स में आपको कैक्टस मिलेगा. ओके, यू विल फाइंड कैक्टस देयर. So different type of natural vegetation are dependent on different climatic conditions. तो climatic conditions बहुत मैटर करते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर ही आप देखते हैं कि आपकी वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर रेनफॉल अच्छी है तो आपकी वेजिटेशन भी बहुत अच्छी होगी. जैसा कि आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट. डेजर्ट्स में आपको पता है रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है. हमारी कंट्री में भी डेजर्ट है. वी हैव अ डेजर्ट, वी हैव थार डेजर्ट. इफ यू रिमेंबर, हमने फिजिकल फीचर्स करे थे हमारी कंट्री के. वी डिड द फिजिकल फीचर्स एंड वी नो दैट इन राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है, यहाँ पर ये पूरा आपका डेजर्टिक रीजन है. दिस इज योर कंप्लीट डेजर्टिक रीजन. यहाँ पर थार डेजर्ट है. एंड ऑल्सो अभी अभी हम आपका मानसून पढ़ के आए हैं. पूरा का पूरा हमने क्लाइमेट डिस्कस करा है. जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आपके विंड्स मूव करती हैं और वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंटर करते हैं, तो वो मेघालय में बारिश देते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट ये विंड्स आगे मूव करती हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये देखते हैं कि इन विंड्स के पास में जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस होता जाता है. क्यों रिड्यूस होगा? बिकॉज देखो, यहाँ से विंड जब आ रही है तो यहाँ से ये वाटर बॉडी पर से आती है. तो वाटर बॉडी जो है वो इनको बहुत सारा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देती है. लेकिन जब ये लैंड के अंदर आ गए हैं, नाउ दे हैव एंटर्ड द लैंड, तो यहाँ पर आपको एज सच कोई इतनी बड़ी वाटर बॉडी नहीं मिलेगी, ठीक है. यू वोंट फाइंड सो ह्यूज वाटर बॉडीज हियर. इसीलिए इन विंड्स का मॉइस्चर कम होता जाता है. और जैसे जैसे ये वेस्टर्न पार्ट में आती हैं, ये रेनफॉल नहीं देती हैं. ऑल्सो आप देखते हैं कि यहाँ पर कोई माउंटेन्स भी नहीं है एज सच जिनसे ये विंड्स स्ट्राइक कर सके और रेनफॉल कर सके. इधर आपके अरावली रेंजेस आते हैं यहाँ पर, तो ये विंड्स जो है वो अरावली से स्ट्राइक करते हैं और ये पूरे इस पार्ट में रेनफॉल दे देंगे. लेकिन ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, यहाँ पर विंड्स बहुत कम बारिश देती हैं, ठीक है. ऑल्सो यू सी यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है. यहाँ पर डेजर्ट्स हैं, तो डेजर्ट में तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, तो ये विंड्स का मॉइस्चर पूरा ड्राई हो जाता है. तो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो डेजर्टिक एरिया है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. 10 सेंटीमीटर और लेस रेनफॉल. सो जब यहाँ बारिश ही नहीं है तो यहाँ वेजिटेशन कैसे ग्रो करेगी? यहाँ पर ट्रीज कैसे ग्रो करेंगे? यहाँ पर प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड वेरी गुड रेनफॉल. सो दैट इज वाई ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका कनेक्टेड है. इसलिए आपको पहले क्लाइमेट पढ़ाया गया. अब आपको अगर क्लाइमेट समझ में आ गया है तो आप नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वेजिटेशन. Due to the varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में इतने ज्यादा climatic variations हैं. There are parts which are extremely cold. कुछ ऐसे portions है हमारी कंट्री में जहां पर पूरे टाइम स्नो देखने को मिलती है. You will find some of the regions जो desertic regions हैं. कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपके नदर्न प्लेन्स कहलाते हैं. कोस्टल रीजन्स है, यू हैव वेस्टर्न घाट, यू हैव ईस्टर्न घाट्स. फिर आपका साउथ आ जाता है जो कि इक्वेटर के पास में है. आपके पास में प्लेटो रीजन्स है, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन्स है. देन ऑल्सो यू नो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उसको हम भूल नहीं सकते. तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है कंट्री का, वहां पर आपके पूरा देखो मॉनसून विंड्स कैसे जा रही हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, एंड दे गिव वेरी वेरी हैवी रेनफॉल. तो वहां पर वेजिटेशन अच्छी होगी, राइट.
वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। हमारी कंट्री के अंदर हम वेजिटेशन को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ये 5 टाइप्स हैं, इनके नाम देखें। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। जस्ट हैव अ लुक एट द नेम्स, इन नेम्स को देखें प्लीज, हैव अ लुक एट दीज नेम्स, कौन कौन से हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देन वी हैव थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। हर फॉरेस्ट के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एवरी फॉरेस्ट हैज इट्स ओन फीचर्स, राइट। जस्ट लाइक यू एंड मी, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। यू आर वेरी मच यूनिक, आई एम वेरी मच यूनिक, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। इन द सिमिलर मैनर, ये जितने भी यहाँ पर आपको फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन दिख रही है, हर नेचुरल वेजिटेशन का अपना अपना एक फीचर है। ओके, so we begin with the natural vegetation and we begin with the first one, that is tropical rain forest. अब देखिए tropical rain forest, इसको tropical क्यों बोला जा रहा है, because ये आपके tropics में lie करते हैं, ठीक है। they will be lying in the tropics. tropics का meaning क्या हो गया, see this diagram, इस diagram को देखें। so this is your tropical zone, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, tropical zone है। 0 degree equator, this will be your northern hemisphere and this will be your southern hemisphere. तो दोनों ही हेमिस्फीयर्स में आपके ट्रॉपिकल जोन आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी आपको ट्रीज मिलेंगे, हियर यू विल फाइंड विच एवर वेजिटेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें लिखा है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर बारिश होती होगी, बहुत हैवी रेनफॉल होती होगी। सो जो हैवी रेनफॉल रीजन्स है, हैवी रेनफॉल रीजन्स में आपको जो भी वेजिटेशन मिलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। They are so dense that sunlight doesn't reach the ground. इतने dense होते हैं tropical rain forest। देखो ये रहा, this is the diagram of tropical rain forest। ये देखिए, ये पिक्चर है आपके tropical rain forest की। and tropical rain forests are so dense, dense का मतलब होता है घना, ठीक है। इतने घने होते हैं ये, that जो आपकी सनलाइट होती है वो नीचे ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। the sunlight actually cannot reach till the ground. सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगी। दे आर so dense, इतने ज्यादा डेंस होते हैं that sunlight is not able to reach the ground. Okay, see, I'll show you some of the pictures of tropical rainforest. So tropical rainforest जो होते हैं, they are so dense, they are so इतने ज्यादा dense होते हैं कि जो आपकी सनलाइट होती है वो सनलाइट नीचे ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, और वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहती है। सनलाइट आपको सिर्फ ऊपर ऊपर मिलेगी। जस्ट हैव अ लुक, देखो, यू वोंट फाइंड सनलाइट इन द ग्राउंड एरियाज। जो इसका ग्राउंड होगा, जो इसका सरफेस होगा ना, वहां पर आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। सो देयर सच डेंस फॉरेस्ट, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं डेंस फॉरेस्ट, बिकॉज यहाँ पर पूरे टाइम बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पर बहुत आपको डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। क्लियर? Many species of trees are found in these forests which shed their leaves at different times of the year. Therefore, they always appear green and they are called as evergreen forest, as you may notice in the figure. तो अगर आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में, तो आपको पूरे ग्रीन दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो अभी हमने आपको ये डायग्राम दिखाया, इसमें भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये ग्रीन है। ऑलवेज दे अपीयर ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि बारिश होती रहती है, और ये ट्रीज जो हैं, ये ट्रीज सारे के सारे एक साथ अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइम्स ऑफ एवरी ट्री। हर ट्री कुछ अलग अलग समय पर अपने लीव्स को शेड करता है। इस वजह से आप ये देखते हैं, यू फाइंड दैट
these forests appear green always, ये हमेशा आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका दूसरा नाम क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। Important trees which are found in these forests are mahogany, ebony, rosewood. Andaman and Nicobar Island, parts of northeastern states, and a very narrow strip of the western slope of the Western Ghats are home to these forests. That means ये forest आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? So you will find in the Andaman and Nicobar Islands. You know where are Andaman and Nicobar Island? See this. Here you can see Andaman and Nicobar Islands. यहाँ पर आपको ये मिलते हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट रीजन है, यहाँ पर आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ऑल्सो वेयर एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर कितनी हैवी रेनफॉल होती है, सो इन दीज ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिनको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों मिलेंगे यहाँ पर? क्योंकि मॉनसून की विंड्स जो है यहाँ पर एंटर करती हैं और सबसे पहले यहीं पर ही बारिश देती है। तो जब इनके पास में इतना सारा मॉइस्चर है, सबसे पहले मॉइस्चर शेड ही कहाँ हो रहा है? ये सबसे पहले मॉइस्चर यहीं पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये विंड्स यहीं स्ट्राइक करती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत अच्छी आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी। यू विल फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट हियर। ठीक है, तो ये कौन से एरियाज हैं? हैवी रेनफॉल एरियाज। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर हैवी रेन्स देखने को मिलती है। यू विल फाइंड वेरी वेरी हैवी रेनफॉल। दीज आर द एरियाज वेर यू सी हैवी रेन्स। आई शो यू वन मैप, एक मैप आपको दिखाते हैं, उस मैप से आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हैवी रेनफॉल होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सी हियर, इस मैप को देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखा है और यहाँ पर आपको बता रखा है रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, कि आपको रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स बता रखा है। कौन कौन से रीजन हैं जहां पर अबव 400 रेनफॉल होती है, कौन से रीजन हैं जहां 200 to 400 रेनफॉल है, ऐसे ही आपको पूरा कॉलम में यहाँ पर इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, सो हैव अ लुक टू दिस इंडेक्स। ये देखिए डार्क ब्लू कलर, सो यू कैन सी डार्क ब्लू कलर ओवर हियर। So these are the areas जहां पर 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिलेगी। Then you see this purplish color, 200 to 400 सेंटीमीटर। देखो 200 to 400 सेंटीमीटर, that means a very good amount of rainfall. That is why यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ऑल्सो वेस्टर्न घाट्स की बात करी, वेस्टर्न घाट्स में देखो यहाँ पर दीज आर योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमने पढ़े थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करी थी, देन वेस्टर्न घाट्स की बात करी थी। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखो 400 सेंटीमीटर्स, देन यू सी 200 to 400 सेंटीमीटर, दिस पर्पल कलर। आई होप दैट इट इज विजिबल टू यू, दिस पर्पल कलर, राइट। सो दीज आर द अगेन एरियाज जहां पर बहुत हैवी रेनफॉल्स होते हैं, बहुत हैवी। सो दैट इज वाई अगेन यू विल हियर फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑल्सो आइलैंड ग्रुप की बात करी हमने, ये रहे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर भी देखो आप कितनी ज्यादा हैवी रेनफॉल्स हैं, इसलिए आपको ये मैप दिखाया जा रहा है कि आप रेनफॉल पैटर्न देखें, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखें। यू कैन सी द एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी पूरी कंट्री में कहाँ पर कितनी कितनी बारिश हो रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा हैवी रेनफॉल मिल रही है वहीं पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, ऑल राइट। कौन कौन से आपको ट्रीज मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में? यू फाइंड मोहोगेनी, यू फाइंड इबोनी एंड रोजवुड। और भी होते हैं बट दीज आर सम ऑफ द मेजर ट्रीज यू फाइंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट।